Great morning, everyone. Hello. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Am I audible अच्छी तरीके से सबको? Yes, ma'am. Audible. Good morning, ma'am. Yes, Great, ma'am. great. Good morning. Great morning. Happy morning, everyone. I know every Good Sunday, morning, ma'am. everyone has to sit. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Everyone has to sit to listen to my lecture, right? But today's class is going to be worth, okay? So people are joining. ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन होने वाले हैं. They will join in a few minutes. उसके पहले I just want to discuss about the yesterday's questions that I have put on the group. ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे आंसर्स दिए ना which were not at all expected. तो कैन वी डिस्कस द आंसर्स टू द क्वेश्चंस जो कल मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए थे? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. few of them have bothered to answer, किसी ने आंसर नहीं किया है, but that's perfectly fine. We will as far as knowledge is delivered to you, right? Okay, so I'll just read out the questions and I will tell you as to why the answer is. ठीक है, क्योंकि सिर्फ आंसर पता करने से फायदा नहीं है. यू शुड नो द बेसिक रीजन व्हाई इट इज लाइक दैट, राइट? Yes, everyone. Acha, please raise your hands who all are new to the session, today's session. Who all are new? Okay. Yes, okay. Okay, great. So we have many people. Okay. Who all are new? Okay. Right. Okay, fine. So to the people who are new, this is Dr. Amita. You might have seen me on the Facebook. I am doing this job of taking webinars is to create an awareness and to deliver a correct knowledge. That is very, very important. Okay, and all those things I will be discussing. मैं ये सारी चीजें जो है आज के वेबिनार में मैं डिस्कस करने वाली हूँ about what you think and what perception you have, okay, and how to change it. Not because I am saying, I am telling you to change, right? कोई भी चीज when you start making a belief of it, ठीक है, beliefs कब बन जाते हैं? क्योंकि वो चीज आप 4-5 बार 10 बार जब एक ही चीज सुनते हो तो वो आपकी बिलीफ बन जाती है. That becomes your belief system. तो उस चीज को आप उसी तरीके से मानने लग जाते हो, right? And you start following those things irrespective of whether it is correct or whether it is incorrect, right? So that is what is happening around us. So in order to get a correct and scientific knowledge, ठीक है, and which is like supported by certain evidences, मतलब कुछ चीजें ऐसे उस पे researches हुई हैं, उससे जो मैं चीज आपको बताने वाली हूँ वो चीज उस चीज से सपोर्टेड है, देन वी कैन डेफिनेटली फॉलो. हम लोग इस चीज को लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं. हम लोग ये नॉलेज लोगों को बिंदास डिलीवर कर सकते हैं, राइट? सो टू बिगिन विथ, हमारे जस्ट जो मैंने क्वेश्चंस डाले थे वो क्वेश्चंस हम लोग फटाफट जो है वो रिवाइज करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इज मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी रिलेटेड टू न्यूट्रिशन? ठीक है, सो here 81 of you have said yes, 2 of you have said no. Okay, so the answer is yes, definitely, and 100% metabolism of body जो है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है. एंड मेटाबॉलिज्म ये डिस्टर्ब होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण या फिर एक्सेस न्यूट्रिशन के कारण. ठीक है, ये भी मैं इलाबरेटली आपको बताऊंगी हमारे आज के सेशन में. सो ये समझना जरूरी है हमें कि रैंडमली जो हम लोग चीजें सुनते हैं, ना प्लीज म्यूट योरसेल्फ.
So these things we hear very randomly from people, from our जो दादी है, नानी है, उनसे सुनते हैं. People around us we hear कि चलो so and so food is good for health. We start believing it, we start following it, and then once you realize कि इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, then you quit on it, right? आप लोग उस चीज को क्विट कर देते हो. एंड क्विटिंग के लिए तो बहुत सारे रीजंस है. why people quit on diet, ठीक है? तो those things are very very important in this perspective to understand कि जो knowledge हम लोगों को deliver करने वाले हैं, it should be a correct and really correct knowledge. Okay, the second question was metabolism can affect our health. Yes, it can definitely affect our health, because अगर वो impair हो जाता है तो हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म है वर्किंग का, बॉडी इज काइंड ऑफ यू कैन से अ मशीन, ठीक है, रेगुलेटेड बाय सम सुपर एनर्जीज. जो हमारे बॉडी में अलग अलग एनर्जीज है, थ्रू आवर ब्रेन, थ्रू आवर हार्ट, थ्रू द लिवर. सो इट इज बीइंग रेगुलेटेड थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हार्मोन्स से इट इज कंटिन्यूसली गेटिंग रेगुलेटेड, राइट? तो इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो डेफिनेटली हेल्थ कैन गेट हैम्पर्ड, ठीक है? Then the third question was metabolism is not related to energy formation in body, ठीक है? Whether this is true or this is false. Here also some people have said true. क्यों? Why metabolism is not related to energy this thing? Because metabolism का मतलब ही है energy formation. सिंपल लैंग्वेज में मैं आज आपको बताऊंगी व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जब हम लोग बात सुनते हैं ना, तो किसी से सुनते हैं, डॉक्टर से सुनते हैं, या फिर किसी दूसरे डाइटिशियन से सुनते हैं, पेशेंट से सुनते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को एक बहुत इलैबोरेट वे से हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं. बट एक सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में देखने जाएंगे, सो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग, ओके, मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ व्हाटएवर यू ईट. आप जो कुछ खा रहे हो ना, उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना, दैट इज मेटाबॉलिज्म. इज इट सिंपल टू रिमेंबर? इज इट सिंपल टू मेमोराइज? एवरीवन पुट इट इन चैट बॉक्स. यस, सिंपल टू रिमेंबर व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? यस मैडम, इट इज सिंपल. अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ना, wait, I'll come to you, Ravi sir. Wait. So this thing, when the whatever you are eating is getting converted into energy for utilization, right? That is a metabolism, and during this process, whatever byproducts are being formed, it can be good for our body, it can be bad for our body. Learning that is nutrition, ठीक है? इस प्रोसेस में जो आप खा रहे हो उससे एनर्जी बन रही है. बाकी की जो चीजें बन रही है आपके बॉडी में, वेदर इट इज गुड और वेदर दे आर बैड, लर्निंग व्हाटएवर इज बीइंग फॉर्म, ओके, दैट इज द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो ये इतना सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया है, बट दिस, ये जो है ना, दिस एंड टू दिस एंड, इट इज अ वास्ट साइंस, ठीक है? क्योंकि देयर इज नॉट ओनली वन न्यूट्रिएंट, देयर आर न्यूमरस न्यूट्रिएंट्स कि स्टिल अभी भी उस पे रिसर्चेस चल रहे हैं. सो एवरी ईयर न्यू थिंग्स आर बीइंग एडेड टू द लिटरेचर. ये नई नई चीजें बुक्स में ऐड होती जा रही है, एंड वी आर लर्निंग दिस साइंस इनटू डेप्थ, और इसकी डेप्थ हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली क्या है? मेटाबॉलिज्म जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, हाउ इट इज बीइंग रेगुलेटेड, लर्निंग दैट इज अ साइंस. ओके, now the fourth question, hemoglobin formation is related to metabolism. इसमें भी दो लोगों ने नहीं बोला है, I don't know why, but it is 100% related to metabolism, and इसी का एग्जाम्पल मैं आज क्लास में आपको देने वाली हूँ, ठीक है? how it is related to metabolism. And then the last question, second last question is Kwashiorkor and marasmus are metabolic disorders. इसमें बहुत सारे लोगों ने ना नो बोला है, ठीक है? Why it is not a metabolic disorder? It is 100% a metabolic disorder. क्योंकि क्वाशियोरकर और मरासमस जो अभी देखा नहीं जाता है बच्चों में, इतना पहले था, राइट? अगर आप उन बच्चों को देखोगे ना, देखने से ही पता चलेगा कि these people are not healthy. तो उनमें इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है
कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज टिपिकली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इससे सिर्फ बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो मतलब उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, राइट। इट इज अफेक्टिंग द बॉडी इन अ सिमिलर विथ सिमिलर फोर्स की जैसे बाकी की चीजें, बाकी के डिसीजेस अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चरकर एंड मरासमस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। लास्ट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे दो लोगों ने वापस से नहीं बोला है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम आर 100% रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, 100% रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम लोग ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और ये हमें पता होना जरूरी है। सो you people are aspiring, you people are, you want to learn nutrition, आप खुद के लिए, आप लोगों के लिए ये सारी चीजें लर्न करना चाहते हो, लेकिन कोई बता रहा है इस पे बिलीव मत करो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। यू थिंक फॉर योरसेल्फ व्हाट इज करेक्ट एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। क्योंकि ऐसे न्यूट्रिशन पे, सिंस मैंने आपको बोला ना कि न्यूट्रिशन इज अ हाईएस्ट अर्निंग इंडस्ट्री, अभी जो है हेल्थ इज द हाईएस्ट अर्निंग इंडस्ट्री और हेल्थ में भी न्यूट्रिशन इज द हाईएस्ट अर्निंग इंडस्ट्री। तो अगर ये चीज आपको करनी है, आपको अपने लाइफ में अपने खुद को करियर वाइज अगर ग्रो करना है, तो इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप एंड इफ यू गो इन अ करेक्ट मैनर, then only you will be able to achieve good results in your clients, ठीक है। आप खुद के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो, क्लाइंट्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो, एंड प्रोवाइडेड यू आर more confident enough than other people who are delivering their knowledge कि मैं जो बता रहा हूँ ना या बता रही हूँ that is 100% correct, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। with proof you can tell people, so उस लेवल तक आपको सोचना है। so these were the answers कि जो मैंने अभी कल के क्वेश्चन में maximum of you ticked it correctly, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ऐसी कोई भी चीज आप सुनोगे, ठीक है, तो you should analyze it, you should think and analyze and then respond to it कि yes this is a thing। अभी उसने बोला है कि बीटरूट खाना इंपॉर्टेंट है आयरन के लिए। who all are the people who believe आयरन डेफिशिएंसी रहेगी तो B12 खाओ, सॉरी बीटरूट खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। yes, is it correct or wrong? just put it in chat box everyone, don't unmute। eating beetroot is going to increase your hemoglobin levels, is it correct or wrong? आयरन रहता है इसमें। करेक्ट मैम। बताओ चैट बॉक्स में डालो, आई एम जस्ट काउंटिंग एवरीवन जो कुछ है अभी जितने मेंबर्स है सब लोग डाल दो। 6 7 डाल दो फटाफट एवरीवन। 8 2 9 2 10 2 11 2 12 13 14 2 yes, और 15 2 और 16 2 17 2 18 2 19 2 19 3 23 yes, और everyone test yourself and see, everyone please। yes, okay, 25 3 okay, so the people who have responded, ठीक है, बाकी के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 26 3 the people who have responded, only 3 of you are correct, ठीक है। जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आधे से कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, उसमें 26 people have responded yes and only 3 people have responded no। so the 3 people who have responded no, their answer is correct, because beetroot if you see in nutritive value of Indian, अगर कोई रेफर करता है उस बुक को, तो if you see the minimum amount of iron is there in beetroot, ठीक है। what is our understanding? ब्लड जो है दैट इज रेड इन कलर, दिस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना। ब्लड जो है वो रेड कलर में है एंड बीटरूट जो है वो उसका भी रेड कलर है, सो इट इज हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव आयरन। डेफिनेटली
बीटरूट में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है विच आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प न्यूट्रलाइज योर टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, ठीक है. बट 100%, 100, राइट इट डाउन समवेयर, बीटरूट विल नॉट हेल्प यू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन लेवल्स, ठीक है. ये आपके ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने के लिए हेल्प जरूर करेगा, बट नॉट विथ एन इंटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग योर हीमोग्लोबिन, बिकॉज आयरन कंटेंट बीटरूट में बहुत 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 ज्यादा कम होता है. ये नॉलेज जो है ना, ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को, ये रैंडमली मैंने ऐसी एग्जांपल दिया बातों बातों में, but these are the things. So this is the awareness that is being created in society. So don't you think that you require a correct and proper knowledge to spread a word for your clients? Yes, आपके clients को सही knowledge मिले या फिर उनको सही result आ जाए, ठीक है. उस पर्सपेक्टिव से अगर आप सीखना चाहोगे ना, अगर आप सीखोगे ना, 100% आपके क्लाइंट्स में रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे. किसी से सुन के कोई चीज अपने प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं करना है. थिंक फॉर योरसेल्फ एंड देन यू कैन मेक योर स्टेटमेंट्स. ओके, यस. सो नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग वन पीपीटी. ओके, वन सेकेंड. So today's topic is very very interesting. इसमें हमारे questions में बहुत सारे. Madam, please do not talk in between. If you have any queries, you can question at the end of the session. Because once I share the PPT, it is difficult for me to minimize it and do the things. Okay? So please mute. Yes. So nutrition and metabolism, 100% nutrition is related to metabolism in different ways. आज के क्लास में जो मैं आपको बताऊंगी, that is the fraction of the things that exist actually when metabolism and nutrition की जब हम लोग बात करते हैं तब. Okay, learning nutrition is not only learning about foods. You have to learn, आपको क्या सीखना है कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है और न्यूट्रिएंट्स उस काम में आपके बॉडी को कैसे हेल्प कर रहे हैं. दैट इज व्हाट यू वांट टू लर्न इन अ हेल्दी स्टेट. ठीक है, हेल्दी स्टेट में अगर बॉडी डिसीज्ड है तो डिसीज स्टेट में न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है. एंड देयर आर डिफरेंट रूल्स एज ए, कोई न्यूट्रिएंट आप समझ लो कि आयरन है तो आयरन या फिर हीमोग्लोबिन या कोई भी न्यूट्रिएंट, लेट्स से कैल्शियम है. सो कैल्शियम इन अ नॉर्मल स्टेट, इन अ हेल्दी स्टेट will behave in a different way in body, ठीक है. और कैल्शियम in a disease state will behave in a different way in a body. पोटेशियम, आपको पता है पोटेशियम अगर ज्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, the person dies on spot. बटर इट करके नहीं படிச்சல बटर इट पर्सन जो है ना वो அதே படிச்சேடா. एक 1 सेकंड, let me just put this person out. Who is this who is not muted, please? This is very very disturbing whenever I'm, because it breaks my link. and जो knowledge, जो चीजें मुझे आपको बतानी है ना, बाकी कुछ नहीं होता है, टाइम तो जाता है that I am comfortable with, लेकिन मेरी लिंक अगर टूट गई ना तो जो मैं चीज आपको बताने वाली हूँ कि जो बहुत शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है उसमें लिंक टूट जाती है. सो टेक केयर कि आप लोग म्यूटेड स्टेट में रहो. एंड यू हैव एनी क्वेरीज, पुट इट इन चैट बॉक्स. At the end, सब लोग unmute करके you can ask your questions. Okay, for 10 to 15 minutes we all discuss about the usually discuss about the session. Okay, so take care of it. Yes. So yes, is the PPT visible to you, everyone? No, madam. No, ma'am. Wait. Yes, now okay. You can see the PPT.
Yes, madam. Yes, Okay. ma'am. Fine. Now mute yourself and do not unmute unless I tell you. Okay? So nutrition and metabolism is highly related. मैं ये कह रही थी आपको कि जो मैं इस सेशन में आज लेने वाली हूँ, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि जो आपको मैं आज बताऊंगी कि किस लेवल तक, किस डेप्थ तक जाकर आप न्यूट्रिशन साइंस सीख सकते हो. न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग फूड्स एंड उनके कैलोरीफिक वैल्यूज ये वो. इट इज फर्दर देन दैट कि जैसे एक कोई हम लोग कैल्शियम की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम जो है ये हमारे बॉडी में हेल्दी स्टेट में अलग बिहेव करेगा और डिसीज स्टेट में अलग बिहेव करेगा. पोटेशियम एक्सेस हो जाने से पर्सन जा सकता है ऑन स्पॉट. ऐसे अनेक एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है विच आई कैन गिव यू वेयर न्यूट्रिएंट्स का बिहेवियर ये भी हमारे बॉडी में चेंज होता है. ओके, सो ये सीखना जरूरी है. हर बार एक न्यूट्रिएंट जो अगर किसी ने बोला कि यस यू नीड टू टेक विटामिन डी या फिर विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर, द करेक्ट मेथड ऑफ टेकिंग विटामिन डी, द करेक्ट मेथड ऑफ एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सनलाइट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो हर एक न्यूट्रिएंट की अपनी कुछ खासियत है एंड उसका काम कोई और न्यूट्रिएंट नहीं करने वाला है बॉडी में. राइट, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हम लोग किसको बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. राइट, सो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अनेक है. तो इफ यू सी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का रोल वो मैग्नीशियम ही करने वाला है. वो मैंगनीज या एल्यूमिनियम या और कोई न्यूट्रिएंट नहीं करने वाला है बॉडी में. या फिर सिलिका है, दूसरा और कुछ है, कैल्शियम है. राइट, तो ये चीज जो है ना, ये समझना जरूरी है. और इसका सिग्निफिकेंस जो है ये मेटाबॉलिज्म में सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है न्यूट्रिएंट्स का. बिकॉज हमारे मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट ब्रेकडाउन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स. सो वही आज हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड्स में. ओके, नाउ व्हाई वी नीड टू नो अबाउट मेटाबॉलिज्म? क्योंकि दुनिया में इतने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं. ठीक है, इतने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लोगों को, एंड दे आर गेटिंग ट्रीटेड इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे. ठीक है, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं that they are treating the effect of that particular disease, particular metabolic error. वो खुद का बेसिक रूट नहीं क्योर कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है सो दैट हम अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं. ओके, सो मेटाबॉलिज्म यहाँ एक बहुत अच्छी इमेज है. इफ यू सी, हम लोग जो कुछ खाएंगे, ठीक है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट से. राइट, एटीपीज के फॉर्म में. तो जो कुछ हम लोग खाएंगे दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एटीपी. यहाँ पे तो बहुत सिंपल इसमें दिखाया है, बट इट इज नॉट एट ऑल दैट सिंपल. ये इतना सिंपल नहीं है. हर एक न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म में कुछ और चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सिंपल है, फॉलिक एसिड क्या करते हैं? फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो गई, चलो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, ये है, वो है. देन अगर नहीं फुलफिल हुआ तो फिर कैप्सूल्स पे पेशेंट को डाला जाता है, टैबलेट्स दिए जाते हैं फॉलिक एसिड के. बट जो फॉलिक एसिड हम लोग फूड थ्रू लेते हैं, ठीक है, फूड थ्रू लेते हैं, वो फॉलिक एसिड डायरेक्टली हमारे बॉडी के लिए यूजेबल फॉर्म नहीं है. ठीक है, दैट इज नॉट द यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड. हमारे बॉडी के लिए जो यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट विच इज गेटिंग कन्वर्टेड. ठीक है, जो नॉर्मल फॉलिक एसिड जो हम लोग खा रहे हैं थ्रू फूड्स, राइट, वो हमारे पेट में जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो जा रहा है लीवर में. लीवर में दिस प्रोसेस इज हैपनिंग. ठीक है, मतलब कन्वर्जन ऑफ अनयूजेबल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड टू एन यूजेबल फॉर्म, मतलब जिसको हम बॉडी यूटिलाइज कर सकती है अलग अलग फंक्शंस के लिए. ये हमें नहीं पता होता है. सो अगर किसी को फैटी लीवर है, ठीक है, फैटी लीवर अगर किसी को है, लेट्स अभी तो हम लोग फॉलिक एसिड की बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे बाकी के साइड इफेक्ट्स भी है, मतलब उस डिसीज के साइड इफेक्ट्स है. तो जब अगर उस बंदे को फैटी लीवर है तो उसका कन्वर्जन फॉलिक एसिड का टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड में नहीं होने वाला है. तो व्हाट इज पेशेंट गेटिंग ट्रीटेड फॉर? पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या मिल रही है अभी? कुछ स्टैटिन्स है या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन है कि जो लीवर के फैट्स को मेटाबोलाइज कर सकते हैं. he or she is getting treatment for that is the effect of the disease. लेकिन डिसीज क्या है कि डिपोजिशन ऑफ फैट्स
or non-metabolism of many nutrients. That is the defect, that is the actual abnormality. अगर वो टैबलेट्स ले रहे हैं तो इट इज ओके इफ दे आर टेकिंग टैबलेट्स, लेकिन अगर वो न्यूट्रिशन ठीक तरीके से नहीं ले रहे हैं, ही विल हैव टू टेक दोस टैबलेट्स फॉर लाइफ टाइम, या फिर उसकी जो पैथोलॉजी है लीवर की ये और आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो इस सिनेरियो में इफ यू सी, मैंने तो इससे फॉलिक एसिड का आपको बताया, बाकी के कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ये लीवर में डिटॉक्सिफाई होते हैं, कितने सारे। सो दिस ऑल एवरीथिंग इज गोइंग टू हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन बॉडी। हम लोग हमेशा प्रोटीन रिच, हाई प्रोटीन की बात करते हैं ना, हाई प्रोटीन डाइट्स, हाई प्रोटीन फूड में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ, जितना प्रोटीन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही दो। बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है एज इन कि कुछ इफेक्ट्स, कुछ गुड इफेक्ट्स बॉडी पर दिखे भी तो उससे जो बैड इफेक्ट्स है वो ज्यादा है, क्योंकि बॉडी में अगर टॉक्सिन्स रहे तो वो आपके नॉर्मल लिविंग सेल्स को इंजर करते ही जाएंगे। फिर वो कोई भी सेल हो, किडनी को, लीवर की हो, एडिपोज सेल हो, या अपनी अपनी नॉर्मल सेल हो कि जो एनर्जी बना रही है हमारी बॉडी में। ओके, सो ये समझना जरूरी है। सो दिस इज लाइक अ एटीपी इज लाइक अ करेंसी। ठीक है, ये एक करेंसी है। करेंसी मतलब क्या कि लेट्स से कि आपने आपको कुछ पैसे मिले हैं, ठीक है, तो अभी आपके पास सो एंड सो अमाउंट है। आप सोचो कि वो पैसे आपको डायरेक्टली मिले हैं, सो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट मनी इन अ करेक्ट वे। ठीक है, अभी आप करेक्ट वे में उस मनी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। शायद से आपने 20% आपने उसका सही इस्तेमाल किया, 80% इसका आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होने वाला है? What is going to happen? You will be at loss, right? तो similarly ATP is a kind of currency. अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया गया then it is good for your body. अगर उसको गलत तरीके से यूटिलाइज किया गया it is going to produce lot of heat in your body. ठीक है, तो कितना खाना खाना है उसके लिए बॉडी का जो थर्मोजेनिस होता है ना, हीट प्रोडक्शन की प्रोसेस, तो वो ज्यादा होने के कारण आपको आपकी बॉडी के जो बाकी के मेटाबॉलिज्म से बीएमआर है उस पे भी इसका इफेक्ट आता है। सो इसीलिए इस करेंसी हमें कितनी चाहिए उतनी ही लेनी चाहिए, और इस करेंसी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट होगा। रेगुलेट एज इन इट विल वर्क इन अ प्रॉपर वे। इसको ऐसे बैठना नहीं पड़ता है, मेटाबॉलिज्म ये है तो ये करो वो करो वो करो, नो, इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। उसका क्या कहना है कि आप सिर्फ सही तरीके से खाना खाओ, और जितना खाना खाया है उस और जितनी एटीपी उससे बनी है, ठीक है, तो उस एटीपी को सही तरीके से यूटिलाइज करो। इतनी ही बॉडी की डिमांड है, और वही बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अभी कैलोरीज तो आ रही है, ठीक है, उसका कन्वर्जन एटीपी में हो रहा है। एटीपी मतलब क्या है, सबको पता है ना एटीपी क्या है? मैं आपको इन शॉर्ट, अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता देती हूँ। एटीपी मतलब हमारे बॉडी में जो एनर्जी, हम लोग जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं ना, जिस एनर्जी के साथ में मैं बात कर रही हूँ, जिस एनर्जी के साथ में कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, सो दैट एनर्जी इज एटीपी। ठीक है, एंड दैट एटीपी इज हैज अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, वो अगर रहेगा तभी आप एनर्जेटिक फील करोगे। एटीपी कम हो गए बॉडी के तो यू विल नॉट फील एनर्जेटिक। ठीक है, तो इसीलिए इस करेंसी को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना जरूरी है। इसका मैं ना बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, अभी लेट्स से आपने जैसे अभी डाइट्स, बहुत सारे डाइट्स आते हैं एंड जाते भी है। जितने फास्ट आते हैं, जितना बज उनका बड़ा हो जाता है, उतने ही जल्दी वो चले भी जाते हैं। सो बीच में ऐसे कोई डाइट्स आए थे कि जिसमें आपको एक ही बार मील लेना है, या फिर मैक्सिमम 2 times आपको मील लेना है, राइट, इन अ डे, एंड देयर आफ्टर यू विल लूज योर वेट, राइट। तो इस केसेस में बहुत सारे लोगों को, अबाउट मोर देन 60% लोगों को वो डाइट्स फॉलो नहीं हो पाए। दैट इज बिकॉज अगर एक ही बार में आप बहुत ज्यादा इंटेक ले रहे हो खाने का, ठीक है, ये आपको सबको अप्लाई करना है अपने पेशेंट्स में, और ये याद से अप्लाई करना है जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने बहुत सारा खाना एट अ टाइम खा लिया तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में करेंसी जो है एटीपी के फॉर्म में, आपको बहुत सारे पैसे मिल गए,
ठीक है, बहुत सारी करेंसी मिल गई। तो नाउ दीज एटीपीज दे आर नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड। खाना खा लिया, फिर डायरेक्टली शाम को खाना खाना या फिर खाना ही नहीं है, तो वो जो एनर्जी है ना वो कुछ हद तक आपकी यूटिलाइज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एंड अ पॉइंट विल कम व्हेन आपका पेट जो है ना वो खाली हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टमक जो है आफ्टर डाइजेशन ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ दिस थिंग, आपका पेट खाली हो जाएगा एंड हंगर सेंटर्स आपके स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, हंगर सेंटर स्टिमुलेट होने के बाद में यू आर नोइंग कि मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है और डायरेक्टली मुझे अभी 10 या 12 घंटे के बाद में खाना खाना है, सो यू आर अवॉइडिंग टू ईट फूड। तो उससे क्या हो जाता है ना, आपके जो सेल्स हैं बॉडी में उनको ये एटीपीज एफिशिएंटली नहीं मिलते हैं, बिकॉज नाउ द बॉडी इज सेंडिंग सिग्नल्स कि यू शुड ईट समथिंग। ठीक है, तो सेल तब तक वेट करेगी कि जब तक आप कुछ खाते नहीं हो, और जो एसिडिटी बन जाती है, लोकल एसिडिटी जो बन जाती है स्टमक में, वो तो अलग ही बात है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज कैलोरीज। तो क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे एटीपीज विल गेट एग्जॉस्ट। ठीक है, और देन यू स्टार्ट फीलिंग लो 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 लो, और फिर जाके आपकी एनर्जी जब एग्जॉस्ट हो जाएगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म गुड इन योर वर्क वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, अभी इस प्रोसेस में ना ये डिपेंड रहेगा कि आपने डाइट में ज्यादा क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, प्रोटीन्स लिए या फैट्स लिए। अगर ये चीजें इनमें से कोई एक अगर ज्यादा हो जाता है तो भी उसका इफेक्ट मेटाबॉलिज्म पे होता है। ओके, सो ये बहुत डेप्थ में है स्टडी। सो टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है। सो अ हेल्दी न्यूट्रिशन इज इसेंशियल टू मेंटेन अ बैलेंस लाइफस्टाइल। मेरा हमेशा ये कहना होता है, वेट लॉस, वेट गेन, एनी मेटाबॉलिक एरर को ठीक करने के लिए देयर इज नो इंस्टेंट रेसिपी। ठीक है, देयर इज नो इंस्टेंट रेसिपी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप इंस्टेंटली करो और 4 दिन के बाद में यू विल कम टू योर नॉर्मल बीएमआई। इट हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस, इट हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि जब ये स्लो प्रोसेस होती है, सो योर हार्मोन्स, योर एंजाइम्स बॉडी में, योर जूसेस, मतलब इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो जूसेस बनते हैं, ऑल दैट बिकम स्टेबल। वो सारी चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाती है। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि अगर एक दिन आपने बहुत खाना खाया, ठीक है, अभी कैलोरीज आपको 2000 की जरूरत है और आपने 4000 कैलोरीज एक ही दिन में खाया, दूसरे दिन आप कंप्लीटली भूखा रह सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव हैड इनफ कैलोरीज दैट विल सप्लाई एनर्जी फॉर 2 days। रह सकते हो आप सेकेंड डे फुल एम्प्टी स्टमक, कुछ नहीं खाना है। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये हमें रेगुलेट करना जरूरी है थ्रू प्लानिंग अ प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट विच द पेशेंट कैन फॉलो एवरी डे। मतलब हर दिन वो फॉलो कर सकता है, ऐसे नहीं कि महीने भर करना है, वेट लॉस हो गया खत्म हो गया बात। नो, इट हैज टू बी अ परसिस्टेंट दिस थिंग विच विल इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स, द फंक्शनल ग्रुप्स, हमारे प्रोटीन रिच फूड्स, एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड वे, तब जाके ये जो मेटाबॉलिज्म है ये करेक्ट होगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। ठीक है, आज नाउ व्हाई वी शुड वरी। आज हम देख रहे हैं सोसाइटी में ओबेसिटी, थायराइडिज्म, पीसीओडी, डायबिटीज, दिस हैज बिकम सो कॉमन that every second person will have either of these, right? In India I'm talking about, world का तो सिनेरियो और भी अलग है। ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट पर्सन, ऐसे बहुत कम, मतलब हाफ से भी कम लोग होंगे, अभी स्टैटिस्टिक्स में आपको बताऊंगी, हाफ से भी कम लोग हैं कि जिन लोगों के कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो भी अनडायग्नोस्ड है, अगर डायग्नोसिस किया तो उसमें हाफ लोग इसमें आ जाएंगे पॉजिटिव इसमें। तो ये जो बीमारियां है ना, ये हमें तो पता है कि दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो हम लोग अभी डाइट प्लान्स बना रहे हैं, हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल लोगों की अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? What are we actually doing? We are actually treating only the effect of the disease. जो डिसीज है उसका सिर्फ इफेक्ट हम लोग कम करने की या फिर उसकी तीव्रता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर पता है क्या है? कि जब ये मेटाबॉलिक एरर्स एक आध पर्सन में होते हैं, सो इट इज नॉट फ्यू डेज टाइम, इट हैज एवोल्यूटेड आउट आफ्टर लाइक मेनी इयर्स टाइम। तो इस एवोल्यूशन की प्रोसेस में ना सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर क्या है? जेनेटिक म्यूटेशंस।
ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर जेनेटिक म्यूटेशन का होता है, क्योंकि एक बार बंदे को डायबिटीज हो गया, दैट मीन्स उसके जीन्स में वो कोडिंग हो गया। ठीक है, हमारे जेनेटिक मेकअप जो होता है ना, जीन्स हमारी होती है ना, उसके कोड्स डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो अगर वो कोड जो है वो नहीं है तो उसको डायबिटीज नहीं होगा। बट अगर वो कोड बन जाता है उसकी बॉडी में ड्यू टू इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, तो ये आप समझ लो कि नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज ऐसे के ऐसे पास होने वाली है। सो अगर उस लेडी को 2 बच्चे हुए तो एटलीस्ट एक बच्चे में वो जीन चला जाने वाला है, और दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, अगर उसने बचपन से लाइफस्टाइल अपना ठीक नहीं रखा तो। ओके, सिमिलरली विथ थायराइडिज्म, विथ पीसीओडी एंड विथ ओबेसिटी, दीज आर ऑल जेनेटिक म्यूटेशनेबल डिसीजेस। और जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं कि पेशेंट्स को, तो उनको बताना जरूरी है कि वी आर नॉट ट्रीटिंग ओनली योर ओबेसिटी, 6 महीने में आपका वजन कम हो गया एंड यू आर डन विथ इट। नो, यू हैव टू कीप फॉलो अप्स देयर आफ्टर ऑल्सो, क्योंकि ये जो म्यूटेशन हो गया है ना, उसका चेंज करना जरूरी है। राइट? इज एवरीवन विथ मी? यस? Yes, madam. So Yes, ma'am. so what is at risk? You understood what is at risk? So our future generation, अगर आप सोचो कि इस जनरेशन में, अभी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 50%, 50 से भी ज्यादा है, लेकिन अभी 50% मान के चलते हैं, 50% लोगों को प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक एरर्स है। ठीक है, इफ दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, उसमें से एटलीस्ट 40% लोगों के जेनेटिक म्यूटेशन 100% होगा। ठीक है, अभी 40% उन लोगों में से जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, दे ऑलमोस्ट, उसमें भी 50% लोगों को ऑटोमेटिकली वो डिसीज लेकर ही आ रहा है अपने बॉडी में। ठीक है, एंड ही इज एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट डिसीज इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स में इट्स गोइंग टू बी, अभी तो स्टैटिस्टिक्स पीसीओडी का 10 इन 1 लेडी, नॉट 10, अभी वो और भी कम हो गया है, 8 लेडीज में से 1 लेडी को पीसीओडी है। ओके, 8 लेडीज में से 1 लेडी को। आफ्टर 10 years it's going to be 1 in 5 women, 1 in 5 women। उसके बाद आफ्टर 10 years it's going to be 1 in every, like वो 50% रेशियो हो जाएगा, मतलब 2 में से 1 लड़की को पीसीओडी है ही है। ठीक है, सेम एज विद द थायराइड, सेम एज विद द डायबिटीज। अभी तो इंडिया कैपिटल है डायबिटीज का। जस्ट इमेजिन कि ये चीजें लोगों तक नहीं पहुंची गई ना, तो इट्स गोइंग टू बी दैट एवरी फैमिली विल हैव एटलीस्ट 2 members having diabetes, every nuclear family having at least 2 members who are diabetic। मम्मी कि जिसमें जीन म्यूटेशन हुआ है, एंड बेटा कि जिसको जो जीन लेकर आया है, मे बी हस्बैंड इज पेड, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, दैट इज व्हाई वी शुड वरी, बिकॉज दिस कैन एंटर इन आवर हाउसेज ऑल्सो। अभी तो हम लोग क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्लाइंट्स के घर में हो जाएगा तो क्या उतना सिग्निफिकेंस हमें नहीं लगता है, बट यू, बिकॉज यू आर नोइंग अबाउट न्यूट्रिशन, यू आर फॉलोइंग, मे बी योर किड्स विल नॉट, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें करेक्ट नॉलेज और करेक्ट मेथड ऑफ काउंसलिंग एंड करेक्ट डिलीवरी ऑफ आवर मैसेज शुड बी डन। ओके, एंड इट हैज टू बी डन। जब मैं ना कोई प्रोग्राम्स लेती हूँ, मैंने ये इमेजेस ऐसे ही डाले हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चाहे वो डॉक्टर्स हो या आईटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, जब मैं इंटरेक्ट करती थी ना डॉक्टर्स से, डॉक्टर्स हु आर ऑलरेडी बी आर इनटू द फील्ड ऑफ दिस थिंग हेल्थ, राइट? या फिर आईटी प्रोफेशनल्स है कि जिनको हम लोग लाइक प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट या फिर हेल्थ अपलिफ्टमेंट के लिए मैं उनको सेशंस देती थी। तो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम, और मैंने उनसे अभी नॉलेज वाइज, व्हाट डू यू थिंक, हेल्थ का नॉलेज डॉक्टर्स को और आईटी पर्सन को किसको ज्यादा होना चाहिए रिगार्डिंग हेल्थ? हु शुड हैव अ बेस्ट नॉलेज? व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट हेल्थ? इन दोनों डॉक्टर्स ऑब्वियसली डॉक्टर्स को होने चाहिए, बिकॉज दे आर इनटू ऑलरेडी इनटू दिस फील्ड, बट स्टिल दे आर देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, मे बी उनको बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पता है, बट रिगार्डिंग न्यूट्रिशन दे आर इक्वली इलिटरेट एज द अदर पीपल आर। ठीक है,
आईटी प्रोफेशनल्स को जितना नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन का, उतना ही नॉलेज डॉक्टर्स को भी नहीं है न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो ये जो चीज है ना, ये करेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू करेक्ट द मेटाबॉलिज्म्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इनिशियली जब अभी तो मेरे पास मतलब बाकी के लोग हैं कि जो डाइट प्लान्स वो सब देते हैं, लेकिन पहले ऐसे होता था कि जब मैं खुद डाइट प्लान देती थी, तब इनिशियली आई फाउंड कि जितना मैं टाइम लोगों के साथ स्पेंड करूंगी ना, उतने डिटेलिंग में लोग हमें कनेक्ट करते हैं, लोग हमें बताते हैं, एंड वी एग्जैक्टली फाइंड द करेक्ट कॉज ऑफ। और ये चीज हमें मिल गई ना, तो उनका डिसीज ट्रीट करना बहुत बहुत इजी हो जाता है। इट कैन बी एनी कॉज। Stress is also related to metabolism. Please mute who is unmuted just now. Stress is also related to metabolism. Deficiencies is also related to metabolism. बाकी के metabolic errors, the genetic influence is also related to metabolism. एक मेटाबॉलिज्म बॉडी में है तो दूसरा आने वाला है, that is also related. ठीक है, अभी ऐसा हो गया है ना कि if a lady is having PCOD, not only girl, even males also. अभी ये PCOD का एग्जांपल तो गर्ल्स के लिए है. If a girl is having PCOD in future, there are chances she can develop diabetes, she can develop obesity because of insulin resistance. और ये हो रहा है लोगों में, ठीक है। सो ये हमें देखना जरूरी है, एंड लोगों को बेसिक लेवल जब है ना उनकी, तभी उनको ट्रीट करना जरूरी है। ओके, पर्सनल सेशंस में लेती थी तो स्पेसिफिकली फीमेल्स में जब ये सेशंस लिए जाते थे ना, मतलब डाइट काउंसलिंग के या फिर इवन बाकी के, जब मैं होम्योपैथी कंसल्टेशन करती हूँ, तब मैं लोगों का देखती हूँ ना, दे इवन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैज इन्फ्लुएंस, हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर मेटाबॉलिज्म। किसी को कोई ग्रीफ है, कोई एंगर इश्यूज है, फ्रस्ट्रेशन है, एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इशू is also related to metabolism. उनके periods normal नहीं आएंगे, उनको deficiencies होगी, all these things are happening. Okay? So what is happening? मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है? अभी मुझे mute करने दो किसको. Madam, I can't hear what you are saying. See, everybody can hear, so you should also be able to hear. Madam, because of that Pooja, madam, please say to that girl unmute. Okay? One second ना, let me just. हाँ, PPT दिख रही है ना सबको? Yes? PPT is visible? Okay. So what is happening now कि लोगों को people are into a confusional state as well as the बाकी के जो न्यूट्रिशन सीख रहे हैं, they are also in a confusion कि exactly क्या करें, ठीक है। Specifically people, they are not knowing why their health is at not at a normal this thing. क्यों हो रहा है ये? कल अभी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना कि who are having some kind of ailment और उनको पता ही नहीं है उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डिप्रेशन के लिए आते हैं मेरे पास। एंड जब मैं उनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल करा लेती हूँ ना, देन आई फाइंड कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है। वो करेक्ट कराने के बाद में उनका कंसंट्रेशन ये वो सारा ठीक हो जाता है। कॉलेज गर्ल्स स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ उनकी, बिकॉज एट दिस एज ग्रुप फूड टैंट्रम्स बहुत होते हैं, फिर जैसे खाना टाइम पे नहीं खाना, ये वो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है इन लोगों में ज्यादा है। सो दे आर लैंडिंग इनटू अ प्रॉब्लम। अभी दिस इज एट अ बेसिक लेवल। तो अभी जब अगर ये इस लेवल पे करेक्ट किया गया, तो बाकी के जो डिसीजेस है, जो बड़े बड़े मेटाबॉलिक एरर्स है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये अनकंट्रोल रहे ना, ये वाला एज ग्रुप, चाइल्डहुड एंड टीनेजर्स वाला एज ग्रुप, इनमें करेक्ट नॉलेज पेरेंट्स को नहीं दिया गया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू, मतलब जो रेशियो मैंने आपको बोला ना, एवरी सेकेंड गर्ल विल हैव पीसीओडी इन नेक्स्ट 15 to 20 years, तो वो चीज 100% होने वाली है। ये तो मैंने बहुत दूर की बात बोली है, इट कैन हैपन आफ्टर 5 years ऑल्सो। ओके, सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस कंफ्यूजन एंड इन ऑर्डर टू इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, यू शुड बी हैविंग अ करेक्ट अवेयरनेस, नॉट ओनली अवेयरनेस, इट इज आई वुड से लिटरेसी, ठीक है। यू शुड बिकम अ लाइक न्यूट्रिशनल लिटरेसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई अगर डाइटिशियन ने आपको बोला कि स्मूदी लेनी है, ये एग्जाम्पल मैंने आई थिंक 2-3 सेशंस में आपको बताया भी होगा, लाइक हाई प्रोटीन स्मूदी लेनी है,
ठीक है, या फिर हाई फाइबर स्मूदी लेनी है, that girl or that lady is deficient of iron also. If you are mixing iron with a high fiber diet in that smoothie, the iron absorption उतना effectively नहीं होने वाला है, ये आपको पता होना जरूरी है. सो करेक्ट न्यूट्रिशन नॉलेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में द न्यूट्रिएंट्स दे आर इंटरेक्टिंग विद आवर बॉडी आल्सो, द न्यूट्रिएंट्स दे आर इंटरेक्टिंग विद इन देमसेल्व्स आल्सो. ठीक है, वो अपने आप में भी इंटरेक्शन उनका चल रहा है. विटामिन डी विटामिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए, ये सबको पता है. लेकिन उसके साथ में अगर फाइटिक एसिड ऐसे कोई एलिमेंट्स आ गए पेट में, तो वो एब्जॉर्प्शन आयरन और कैल्शियम का डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट इट इज गोइंग टू रिड्यूस. ठीक है, तो ये हमें पता होना जरूरी है कि व्हाट कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स आइडियली वी शुड बी गिविंग टू पेशेंट्स. ओके, सो न्यूट्रिशन, दैट इज व्हाई लिटरेसी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना. जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन लिटरेसी, इज इट ओनली रिलेटेड टू फूड्स? क्योंकि मैंने फूड का एग्जांपल आपको दिया अभी. सो इज इट ओनली रिलेटेड टू फूड्स? नो, because you are applying the science of nutrition onto body to make that body healthy. ठीक है, वो सो एंड सो पर्सन को हेल्दी बनाने के लिए आप ये नॉलेज अप्लाई कर रहे हो उस बंदे के लिए. तो आपको बॉडी का, उसके डिसीज के सिम्टम्स का, एंड व्हाई दैट डिसीज इज देयर, ये सारा नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन लिटरेसी. बिकॉज अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन बॉडी में है, तो जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था, न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू एक्ट इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स काम करेंगे. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी कि अगर किसी को खांसी है, ठीक है, अभी लेमन वाटर से उसकी ओबेसिटी तो कम होती जा रही है, लेकिन उसको खांसी है, तो दैट पर्सन कैन नॉट कंज्यूम लेमन वाटर, राइट. सिनेमन से बीएमआर बढ़ता है, लेकिन सिनेमन से एसिडिटी भी होती है. तो जिस पर्सन को एसिडिटी है उसको हम लोग सिनेमन नहीं दे सकते. तो ये जो है ना, ये सुपरफिशियल जो है, मैंने आपको 2-3 चीजें इजी लैंग्वेज में बताई है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो न्यूट्रिएंट्स इन मैनेजिंग मेटाबॉलिज्म, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसमें मैं आपको अभी बताऊंगी कि how nutrients are important in managing your actual metabolism. Okay, so what is metabolism? Metabolism is again, जो old लोग हैं उनको पता है. For the fresh people, I am telling you, the metabolism is nothing but breakdown of carbohydrate, proteins and fats to get energy, right? जो मैंने पहले आपको बताया था अभी जस्ट जब हमने सेशन स्टार्ट किया था. Breakdown of carbohydrates, breakdown of proteins and breakdown of fats in order to get ATPs, या फिर in order to have that building and repair process in our body. All this is being helped by vitamins and minerals, and that is metabolism. जो breakdown हो रहा है आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का, उससे जो एनर्जी रिलीज होने वाली है, उस एनर्जी को फॉर्म होने के लिए you are going to require vitamins and minerals. ठीक है, तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसमें मैं आपको ना कुछ थोड़े से एग्जांपल्स में देना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल विटामिन डी. विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीवन नोस, राइट. कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इट हैज आल्सो रोल टू डिपॉजिट कैल्शियम ऑन टू बोन्स. अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है बॉडी में, तो कैल्शियम डिपोजिशन बोन पे ठीक तरीके से नहीं होने वाला है. ये भी 50% लोगों को जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनको पता है, राइट. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इस डिपोजिशन में बाकी के जो मिनरल्स है, जैसे मैंगनीज है, बोरॉन है, सिलिका है, एंड सम प्रोटीन, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग. सो अगर आपने विटामिन, ये नॉलेज के साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि विटामिन डी और कैल्शियम साथ में देना चाहिए, ट्रू, दैट इज नॉट फॉल्स. बट इसके आगे ये भी आपको पता होना चाहिए कि उन फूड्स में वट एवर द पर्सन जो फूड्स ले रहा है, दैट शुड, मतलब जो वो क्या बोल रहे हैं, उसका इंटेक है दिन भर का, दैट शुड बी ऑल्सो इनरिच विद द अदर मिनरल्स. ठीक है, इसीलिए हम लोग कैप्सूल से ज्यादा हम लोग डाइट पर ज्यादा फोकस करते हैं.
बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि ठीक है ना, फिर हम लोग अभी आपने कैप्सूल लिख के दिए तो मतलब सनलाइट से एक्सपोजर वो नहीं होगा तो चलेगा ना, फिर विटामिन डी बॉडी को तो मिल रहा है थ्रू कैप्सूल, विटामिन डी मिल रहा है थ्रू कैप्सूल, दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। लेकिन सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से जो प्रोसेस होती है बॉडी में, उसमें कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी हमें मिल रहा है, तो अगर वो लेडी ओबीज है तो उसके ओबेसिटी कम होने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच इज फॉर्म बाय आवर बॉडी इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उस ये फॉर्मेशन के लिए जो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो कोलेस्ट्रॉल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपके एडिपोज सेल्स, आपके एडिपोज टिश्यू, ये इसका भी तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर इसके लिए अलग से आपको एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको विटामिन डी भी मिल रहा है और ये ओबेसिटी भी आपकी कम हो रही है बाय बर्निंग दोस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी, राइट। तो इसका ड्यूअल पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पर होता है, अनलाइक जो डायरेक्टली हम लोग कैप्सूल लेंगे। सीवियर डेफिशिएंसी है, कैप्सूल लिया है पेशेंट ने, स्टिल यू प्लान अ डाइट, क्योंकि आपका बाकी का जो ये है डाइट एंड लाइफस्टाइल, बाकी के जो फैट्स है उसका भी मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, okay। So this is one example I gave you of how metabolism is related to nutrients. Yes, everyone is getting? So how obesity is related to vitamin D? Yes, Yes, madam. Yes, madam. now coming to red blood cells, जैसे मैंने आपको बोला कि रेड ब्लड सेल्स जो है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के लिए, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए, यह यहाँ पे प्रेजेंट सबको पता है, राइट। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए या फिर रेड ब्लड सेल फॉर्म होने के लिए आयरन की जरूरत है। इसमें 70% लोगों को ये पता होगा कि रेड ब्लड सेल को बनने के लिए B12 एंड फॉलिक एसिड की भी जरूरत है, राइट। बट 30% पीपल डज नॉट नो, आई एम 100% श्योर कि इनमें बाकी के एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोटीन्स, कॉपर, then some amount of magnesium, all these things you will be needed to form a proper red blood cell, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल फॉर्म होने के लिए, प्रॉपर होने के लिए, और उसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी 100% रहने के लिए ये सारे एलिमेंट्स आपके बॉडी में होना जरूरी है। सो कॉपर है ना, कॉपर, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर? कॉपर का जो रोल है ना, वो डायरेक्टली एट दी साइट नहीं है। सेल फॉर्म हो रही है तो उसके कंस्ट्रक्शन में उसका काम नहीं है, ट्रांसपोर्ट में उसका काम है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सो व्हेन यू आर टेकिंग आयरन, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन कम है, सो मे बी कैप्सूल के फॉर्म में लिया या फिर डाइट थ्रू लिया, व्हाटएवर इट इज, आयरन इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अभी क्या होता है ना, इस आयरन को एक प्रोटीन होता है कि जो इस आयरन को पकड़ के लेकर जाता है बोन मैरो तक, ठीक है। हमारे बोन्स में एक्चुअली हमारी रेड ब्लड सेल्स बनती है, ओके। सो ये ट्रांसपोर्ट होने के टाइम पे जो आयरन एब्जॉर्ब हुआ है इंटेस्टाइन में, वो डायरेक्टली इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को, जिसको हम लोग ट्रांसफेरिन बोलते हैं, उसे डायरेक्टली नहीं चिपकता है, उसको चिपकाने के लिए कॉपर की जरूरत होती है, ओके। एक एंजाइम होती है कि जो कॉपर को एक्टिवेट करती है, एंड दिस कॉपर, ठीक है, इट अटैचेस दैट आयरन टू द ट्रांसफेरिन प्रोटीन, एंड फिर ये कैरी हो जाता है बोन मैरो में, और तब जाके हमारी रेड ब्लड सेल बनती है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर आपको कॉपर डेफिशिएंसी है तो, ओके, तो आपका हीमोग्लोबिन फिर भी नहीं बनेगा। अभी इसके ऊपर है ना, एक मैं आपको कमेंट करना चाहूंगी। आजकल लैब रिपोर्ट्स में इफ यू सी, जो पैकेजेस होते हैं ना, जैसे थायरोकेयर है या फिर अलग अलग जो लैब के ये किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, मतलब जो पैकेजेस में रहते हैं, तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स रहते हैं। जिंक रहेगा, सेलेनियम रहेगा, कॉपर रहेगा, मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम रहेगा, फिर B12, ये वो सारे रहेंगे। लेकिन कॉपर को क्यों स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड किया है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कॉपर डेफिशिएंसी रहेगी तो भी उस बंदे का हीमोग्लोबिन कम रहेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट जितने डॉक्टर्स हैं, हाउ मेनी ऑफ यू टेल कि आयरन डेफिशिएंसी है, इसीलिए हाउ मेनी ऑफ यू टेल पीपल
to get your copper levels of blood tested. तो कॉपर आप अपने ब्लड के कॉपर के लेवल्स अपने ब्लड में चेक करा के लेकर आओ. Nobody tells. And we just randomly जो रिपोर्ट्स आते हैं जो पैकेज में किए जाते हैं उसमें कॉपर लिखा होता है, हाँ चलो हो गया, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, वो हो जाएगा. We just neglect it because we are not knowing how copper is helping in formation of hemoglobin. तो अभी से सबको सिग्निफिकेंस समझ में आया कॉपर का क्या है? Everybody is going to remember this? Yes. madam. आयरन डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन सॉरी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी के लिए आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन, इसके अलावा आपको क्या क्या बाकी की चीजें चाहिए? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यस. सो Yes, madam. दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, राइट? तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं. B12 अगर देखते हैं तो वेट प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब एट द एंड. ओके. B12 अगर देखा जाए तो B12 सबको पता है कि B12 का रोल लाइक न्यूरोलॉजिक फंक्शन में है, डायबिटीज में है, या फिर नर्व्स को इंटैक्ट रखने के लिए है, हार्ट हेल्थ के लिए है. B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो B12 डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, राइट? Yes, but nowadays, if you see reports, there are reports which say that there is increase in B12 levels. अभी जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स मुझे भेजे थे. B12 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है लोगों में. क्यों बढ़ता होगा B12? Yes, और एक चीज मुझे डिस्कस करनी है, why B12 is a metabolic disorder. ठीक है, दोनों चीजें मुझे डिस्कस करनी है. So first thing I will tell you, B12 ये एक्सेस क्यों हो रहा है? कोई भी लीवर पैथोलॉजी है, कोई भी मसल डिसीज है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, किसी भी प्रकार का कैंसर है पेशेंट को, that these are the one of the reasons कि B12 उस बंदे में क्यों इंक्रीज हो गया है. या फिर कॉमन रीजन जो है B12 बढ़ने का, दैट इज लिवर पैथोलॉजी. एंड आपके बॉडी में अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट है तो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्पेसिफिकली मसल्स का, क्योंकि B12 जो है ये मसल्स में स्टोर होता है टू सम एक्सटेंट. अगर मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं या फिर मसल्स में इन्फ्लेमेशन है, तभी भी B12 बढ़ सकता है. या फिर ऐसी कंडीशन कि जिसको हम लोग पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, जिसमें सारे सेल्स जो है ब्लड के सारे सेल्स वो बढ़ जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी B12 बढ़ा हुआ आता है. बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग. B12 को रेंज में रहना ही जरूरी है. ओके. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ B12, इज इट अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? यस, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि B12 का भी जैसे कॉपर का, जैसे आयरन का मैंने आपको बोला, वैसे ही B12 एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन्स में B12 एब्जॉर्ब हो, इसके लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है. ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर B12 को नहीं मिला तो एब्जॉर्प्शन B12 का नहीं होगा. आपकी बॉडी विल बी डेफिशिएंट ऑफ B12 एंड दिस इज द मेटाबॉलिक एरर. क्योंकि इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप B12 खा नहीं रहे हो. इट इज नॉट द डाइटरी फैक्टर. आप खा रहे हो लेकिन बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको B12 यूज करने के लिए नहीं मिल रहा है बॉडी में. गॉट इट एवरीवन? ओके. Yes, madam. विटामिन डी इन डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स. तो विटामिन डी का मैं आपको एक दिन अलग सा सेशन दूंगी, बिकॉज देर आर लॉट मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट विटामिन डी. विटामिन डी बोन हेल्थ और इसके मसल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हमें पता है. बट देर इज अ वास्ट रोल ऑफ विटामिन डी इन कॉग्निशन. ठीक है, बच्चों का कॉग्निशन, ADHD, ऑटिज्म, ये सारे जो बच्चे अभी बच्चों में जो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई बीमारी जो दिख रही है, मेंटल इलनेसेस, दे आर रिलेटेड टू विटामिन डी. तो इसका मैं टॉपिक जो है ना, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दिस टॉपिक आई विल टेक इन इलैबोरेटली इन सम अदर सेशन. ओके. सो जैसे हियर आर द स्टैटिस्टिक्स.
53.4% people in India are having health problems which are diagnosed. Okay, diagnosed. So करोड़ों लोग हैं कि जिनको हेल्थ इश्यूज है, कि जिनका डायग्नोसिस हो गया है. Some people don't have money to get it diagnosed. Some people are reluctant to get their tests done. Some people, कुछ people लोग इतने आलसी होते हैं कि उनको वो चीज करवानी नहीं है. सब कुछ है लेकिन करवानी नहीं है. So there is like 47% people who are not being got diagnosed, मतलब उनका कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ है, मतलब किया ही नहीं है उन्होंने डायग्नोसिस, इसीलिए they are coming into that healthy category, but they are not actually healthy. ठीक है, उनको उनमें अगर कोई एलिमेंट देखा जाए ना तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई ना कोई एटलीस्ट 50% लोगों में कोई ना कोई एलिमेंट निकल आता है. आप सिंपली अगर कोई people who are sitting here, you get your bloods checked. I am sure 90% people will have some or the other deficiency. कुछ ना कुछ तो होता ही है. Okay, so these are not the people who are healthy. The 53.4% people in India are not healthy. So this is because of, and it is all contributed to impaired nutrition. ठीक है, सो न्यूट्रिशन आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशन इम्पेयर हो गया तो ले लो टैबलेट्स. ठीक है, सो मुझे बताइए कि ये टैबलेट्स आप कितना भी खाओगे, क्लाइंट्स कितने भी टैबलेट्स ले रहे हैं, is their metabolism going to get corrected? Is there any medicine? Anyone can tell me, is there any medicine to correct a metabolic error? मेटाबॉलिक एरर को करेक्ट करने के लिए कोई मेडिसिन है क्या अभी? No, there is no medicine for metabolism, madam. देयर इज नो मेडिसिन. अगर आप बोलोगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट करने के लिए है, बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, दैट इज नॉट अ क्योर, दैट इज जस्ट यू आर एलिवेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एन एरर. एरर कुछ और है, उसका जो इफेक्ट दिख रहा है इन फॉर्म ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको आप करेक्ट कर रहे हो. इसीलिए डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. मैं वही बोल रही थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, 10 में से 4 से 5 लोगों का डायबिटीज में रिवर्स कर सकती हूँ, एंड दैट इज अ वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. क्योंकि रेशियो आपको 50% लग रहा है, बट द एफर्ट्स आर 1000% उन लोगों का डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, बिकॉज दीज आर इरिवर्सिबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. अगर इनको हम लोग डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं, सो देयर इज नो साइंस विच कैन रिवर्स दीज एरर्स. कोई भी आके मुझे बोल दे कि सो एंड सो साइंस से हम लोग इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं. सो वी हैव सच अ बिग मार्केट टू वर्क अपॉन, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक एरर्स हैं ये बहुत ज्यादा लोगों में अभी आजकल दिख रहे हैं. ओके, सो इसीलिए आई ऑलवेज टेल पीपल टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, बैलेंस्ड डाइट इज द की टू एवरीथिंग, because these fat diets, ये वो, eating one time, eating two time, it is not working in a long run. It is not at all working. आपने देखा होगा अलग अलग चीजें आती है, every year something or the other comes. स्पिरुलिना आया, फिर उसके बाद में लाइक शुरुआत तो ओट्स से हुई, ओट्स आया, क्विनोआ आया, फिर स्पिरुलिना आया, फिर एंटीऑक्सीडेंट के सप्लीमेंट्स आए, राइट. फिर अलग अलग चीजें आ रही है अभी मार्केट में. सो are these things actually putting place in market? If you see, they are earning their business, okay, claiming कि ये इससे ये पूरा रिवर्स हो जाएगा. कितने लोगों ने सिर्फ सुन के एंड प्रोडक्ट्स की जानकारी लेके अपना खुद का डिसीज जो है ना वो completely actually रिवर्स किया है. There will be very very few, मतलब equal to none only. They have to come to a normal balanced diet, and that is the key to health. That is what I feel. Okay, so metabolism and immune system, immunity is highly related to metabolism. This is a very very interesting topic. I will require next 10 minutes of yours so that I can explain it to you very very clearly. Okay, so is everyone with me? Should I go ahead? Yes, madam. Yes or no? Yes. Okay, Yes, ma'am. so Yes, ma'am. metabolism and immune Yes, system. madam. So immune system. Hi, madam. Now mute yourself, please. Mute. Yes. So metabolism and immune system. Is it related? Is it related? So
थोड़ा सोचो. I will tell you how. Yes, it is definitely related, because if you see, now here is a picture which I have shown you. ठीक है, ये बंदा है, he is getting exposed to n number of toxins around him. ठीक है, अलग अलग toxins. It can be air pollution, it can be food, it can be stress, it can be medicines which is causing an harmful effect on his body. All these are toxins to him. Okay, इससे क्या होता है ना कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स है, these toxins, they are acting on these normal cells. तो नॉर्मल सेल जो है ना, वो कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि वो कैसे दिखती है. इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. उसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज है और उनका फंक्शन भी सुपर्ब है. ऐसा फंक्शन है ना, मतलब दिस इज अ गॉड्स क्रिएशन एंड वी आर ब्लेस्ड विद इट. ठीक है, इस तरीके से एक सेल की जो हमें आंख से दिखती भी नहीं है, वो इतना सारा काम करती है. ये टॉक्सिन्स आते हैं इस सेल को, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव. ये टॉक्सिन्स जो है ना, इन सेल्स को डैमेज करते हैं. ओके, नाउ दीस टॉक्सिन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेयर, जो मैंने आपको सोर्सेस बोले, थ्रू डाइट, थ्रू सम काइंड ऑफ मेडिसिन, थ्रू एयर पोल्यूशन, थ्रू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से ये टॉक्सिन्स बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं. ये टॉक्सिन्स जब हमारी नॉर्मल सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, दीज टॉक्सिन्स आर इन टॉक्सिन्स की वजह से ये जो सेल है ना, ये पूरी तरीके से नाउ सफर हो रही है. It fights initially because your immunity is good. Okay, it is fighting to those toxins. लेकिन ये fight करके करके थक जाती है, and then it gets completely distorted. Now, for a cell to function optimally, ठीक है, उसका ऑप्टिमल फंक्शन होने के लिए एंड 100% उसका फंक्शन होने के लिए सेल को सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन ये नहीं हो पाता है, and cell it loses, cell it starts losing its cell membrane. जो सेल का बाहर का कोटिंग रहता है, कि जो सेल को प्रोटेक्टेड रखता है बाहर की टॉक्सिन से, वो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो लाइस होना शुरू हो जाती है. इट स्टार्ट्स गिविंग अप. ओके, एंड जब ये सेल मेम्ब्रेन गिव अप करना शुरू हो जाती है, तो it gets distorted. And now you tell me, oh, this is a functional cell, this is a non-functional cell. So will this non-functional cell be able to perform its function to optimum? ये जो सेल ऑलरेडी नॉन फंक्शनल हो गई है, ये अपना काम ठीक तरीके से करेगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी. This cell is so beautiful. So if you see a functional cell, it looks somewhat like this. और नॉन फंक्शनल सेल हो जाएगी ना, तो इसमें से ये सारा न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ये सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज है जो काम कर रहे हैं, ये सारा डिस्टॉर्शन हो जाता है. एंड नाउ द सेल बिकम्स यूजलेस, एंड नाउ दैट सेल इज ऑल्सो अ टॉक्सिन टू योर बॉडी. अंडरस्टूड? सो एक टॉक्सिन है, उसने एक सेल को डैमेज कर लिया. नाउ दिस सेल की जो डैमेज सेल है, दैट इज ऑल्सो अ टॉक्सिन टू योर बॉडी. ओके, सो दिस इज हाउ the metabolic errors take place in our body. When such cells they increase in number, the fighting ability of your body it decreases. इसीलिए आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है. दिन ब दिन आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी. मेटाबॉलिक एरर बॉडी टू बॉडी वेरी होगा. ओके, बॉडी टू बॉडी मेटाबॉलिक एरर जो है वो वेरी होगा. कोई लोग बारीक हो जाएंगे, कोई लोग जो है उनका वेट गेन हो जाएगा. Okay, so this is how the body is getting affected because of metabolic errors, and it is really a high time. I'm telling you, it is really a high time to overcome these problems. मैं ये नहीं कहती हूँ कि see, many of you are professionals, but some of you just want to learn because you want to help yourself and you help your family, right? So this is a high time to learn about nutrition in the simplest and more scientific way. Why in a scientific and a simplest way? क्योंकि अगर कोई चीज आप सिंपली लर्न करोगे एंड उसका साइंस आप लर्न करोगे ना, तो उसका एप्लीकेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ओके, सो अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली, आपको फ्री स्पिरिट के साथ में, विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं गाइड कर रही हूँ, वो सही है या गलत है, अगर ये चीज अगर आपको करनी है,
So I do have course for that, a diploma course which I am running right now. If you want to know about this diploma course, you can connect to me or to my this thing. So we will guide to my co worker कि जो हम लोग साथ में काम करते हैं. So see, even I was into a thought कि अभी मैं डॉक्टर हूँ, मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, so why should I learn this? But during the time of corona, it became necessary for me to learn. मतलब मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था, बट व्हेन आई रियलाइज कि पेशेंट्स को इसकी ज्यादा जरूरत है रादर देन गिविंग पुटिंग देम ऑन मेडिसिन. ठीक है, क्योंकि मेडिसिन ये टेम्पररी इफेक्ट लाने वाले हैं, लेकिन इफ वी ट्राई टू करेक्ट देयर लाइफस्टाइल, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट गुड न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट्स, डेफिनेटली उनको रिजल्ट जो है ना, इट इज रियली बिग रिजल्ट्स दे गेट. Okay, so that is why I learned this and I am teaching this science to people. So anyone who wants to know about this course, you can message us on these two numbers. Ek to Viraj hai, you can call him today for any inquiries, or you can message me on WhatsApp, because after 3 o'clock I will be my phone will be on silent mode, so I will not be able to receive your calls. But you can put me a message, we can have a conversation tomorrow about the same. Till then, if you want to know anything else, you can connect to Viraj also. This is his number. Okay, so इसीलिए these are the things that I wanted you to understand about what metabolism is and how it is playing a crucial role in people's health. Okay, and how nutrients are related to metabolism. So ये मैं बोलूँगी ना, this is just 1 or 2% of what the things that I have told you about. 1 or 2 भी नहीं, it is just 0.01% I would say कि जो चीजें एक्चुअली है वो लोगों को पता ही नहीं है. ठीक है, तो now coming to your doubts and queries, I hope you have loved this class. Please follow the things that I have told you. आयरन डेफिशिएंसी है या कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन, don't overtax them with iron and don't overtax them with other nutrients. Rather, think very genuinely, generously about patient's health. Put your foot in your patient's shoes. तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस बंदे को किस चीज की ज्यादा जरूरत है. And when we guide them towards it, then हमारे प्रैक्टिस में ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ला सकते हैं. Okay. So yes, now coming to questions, this thing, any questions, any queries? You learn more out of questioning, out of putting your Madam. queries. Yes. Putting your queries. Madam, Yes. Yes. you told about metabolism questions set starting, no, madam, starting in the class. Once you can repeat for me, madam. No, repetition is very very difficult because it is not like 2 minutes में मैं बोल सकती तो it was very easy, but the whole session was about metabolism. Okay, madam. And So I one more cannot thing. repeat the whole thing, right? Yes, any more questions related to the topic, please ask. Madam, 1 minute. Madam, 1 minute. I'm asking one more question also. You said that ATP chemical formula. I want that formula, madam. I will give you. I will share on group. Okay. Okay, madam. Any other Ma'am, question? Yes. ma'am, like you said that hemoglobin will not get increased by beetroot, because even I was into that myth. Okay, hemoglobin kam hua, have beetroot juice for a week and have a good work, so it will stabilize it. So, but I want to know that if someone want to fill the hemoglobin deficiency or iron deficiency, then what they need to include or exclude in their diet? हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है तो उनके डाइट में क्या इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है. Yes, जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स आपको जो मैंने अभी बताए, यू आइडियली यू शुड बी इंक्लूडिंग दोस न्यूट्रिएंट्स. ओके, अभी मेन्यू प्लान उनका कैसे होना चाहिए, दैट इज अगेन वो बहुत इलाबरेट हो जाएगा. But any product which have highly of that hemoglobin So things which they can foods include like in the diet. if you see like cereals also, pulses contain iron. Then non-vegetarian foods like chicken and all, it contains good amount of iron. Egg yolk contains good amount of iron. Okay,
Then you have dates, black raisins, some dry fruits. They contain good amount of iron, but it should be given with the correct combination. That is the challenge. Okay. 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 Yes. And one more thing, like I have a baby, so I give him dragon fruit at least four to five in a month. So is that would be too much of intake for him? And I combine that with a banana or apple sometimes. 4 month old baby, you're saying? No, my baby is 2 months, but I give him at least four to five dragon fruits in a month. 2 months baby, ideally breastfeeding is the best solution to 2 years. 2 years you are saying. Okay, Yes, okay. yes. 2 years, yes. That is perfectly fine. People around me says that you're giving too much of dragon fruits, which won't be good for him. No. Dragon fruit doesn't have any that much side effect कि आप नहीं दे सकते हो. This is an active, metabolically active age. So during this Yeah. age, you can give fruits. So Okay. is there any quantum that I need to look after, that इतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं? Content, if you see, the dosage will be there in some research paper. If possible, I will share you the paper. You can go through. Yes, please. Okay. Yes. Yeah. Any other question? Hello, Hmm. ma'am. Can you take one session on diet in hyperthyroidism? Yes. No. Please mute, Ashu. Please mute. Can you take one session on diet in hypothyroidism in hyperthyroidism? क्योंकि hypo के Diet बारे में तो and हमेशा दिखता है. hypothyroidism, see, specific clinical conditions, ideally, I do not take in webinars. This is all covered in the diploma course. Because that I have to start from hypothyroidism, म्हणजे thyroid की thyroid के anatomy physiology के साथ में मुझे start करना पड़ता है. So एक session में it is not possible. Okay. ठीक है? Thank Yes. Anything else? Question related to today's topic? Anyone has? Yes. Did you all understand what is the need of society? That is very important for me. Madam, what you said now? Yes. Madam, just now what you said, madam? Did you understand what is the need of society? Metabolic errors लोगों में हो रहे हैं, तो उनकी अभी need क्या है? Did you get it? Yeah. Everyone? Yes, madam, I understood. Okay. Yes. So any other questions? Yes. Those who have raised hands, you can speak directly. Okay. So I think there are no questions. So we will end today's session here. You will be having, acha, how to check B12 levels? You have a test in laboratory. So you can get it checked, blood test. Okay. Madam, can I tell metabolic definition? Definition Yeah, madam. of metabolism. Yes, madam. Why do you want to know the definition? No, madam. At the starting class, you said that what is metabolism? You asked It no, is madam. nothing but conversion of whatever you eat into energy. Okay, madam. Yes. And it is a breakdown of the substances. Yes, breakdown of foods. Correct. Right. Okay. Yes. So we will stop here and we'll see you back. I think on Wednesday or Thursday I will be taking your session. We'll let you know, and the topic I will tell you a day prior. Okay. So have a nice weekend, everyone. We'll see you all in the next session. Bye Madam, bye. are there any tests? Sorry. Are there any tests for knowing this all the B complex levels? Test. Yeah, test is there. No, for B12 it is there. In laboratory you can get the this thing. You will be able to get what all tests need to be done. Now, directly, ideally, it should not be done by yourself. You need to consult a consultant, whether you need it or you don't need it. They will make a prescription, and then that prescription you need to carry to a laboratory. Okay. Okay. Yeah, but B12 in laboratory directly also B12 they do. When you go, you tell them that you want to get your B12 done, so they will do it. Okay. Madam, regarding all the vitamins and minerals, how much portion is there?
all tests we can get any possibilities there? Nutrition What deficiency. question? No, whether for a patient nutrition test will be available for all Yeah, yeah, iron yeah. like that. There is diploma course, no? So I will be discussing all this in diploma. Okay, okay. Yeah, that program I will be discussing. Yes, about the test and how to read the test, how to go about it, what factors you should be considering when you have your like levels are so and so. What patients ideally you should be treating only with the diet. What patient you will need to consult. I mean, what who are the patients who will require also the medicine along with diet. Okay, so all these things we will be discussing in those sessions. Okay. Okay, okay. Thank you. So, yes, somebody had put a query about the diploma course, so that ping me personally, will get in touch. Someone will get in touch with you. Okay. Yes. Any more Madam, queries? I think when today, yes, yes. when is next class? I will inform you a day prior. Okay, madam. Yes, next week. Thank you so much. Yeah, take care. Have a nice weekend, everyone. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you.